سب سے پہلے بات کریں گے سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے۔ دریائے چناب جھنگ کے مقام پر بپھر گیا۔ جھنگ کے 50 دیہات زیر آب آ گئے۔ بیشتر علاقوں میں 20 روز سے سیلابی پانی موجود ہونے سے فصلات مکمل تباہ ہو گئیں۔ متاثرہ علاقوں کا شہری رابطہ منقطع، سڑکیں بند ہونے کے باعث دیہی علاقوں میں پھنسے افراد کی منتقلی کے لیے ریسکیو بوٹس تعینات کر دی گئی ہیں۔ آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں دریائے چناب جھنگ کے مقام پر بپھر گیا۔ جنگ میں سیلابی صورتحال کے باعث 50 سے زائد دیہی علاقے زیر آب آ گئے۔ بیشتر علاقوں میں 20 روز سے سیلابی پانی موجود ہونے سے فصلات مکمل تباہ ہو گئیں، جبکہ سیلابی پانی کم ہونے کے باعث گھروں کو لوٹنے والے مکینوں کی ایک بار پھر سے نقل مکانی کا عمل جاری ہے۔ سیلاب کے باعث چارہ، گنا، چاول اور کپاس سمیت سبزیات کی فصلات کو بھی نقصان پہنچا۔ بیشتر جگہوں پر متواتر پانی جمع ہونے کے باعث بیماریاں بھی جنم لینے لگیں۔ اجل تو یہ جانا چاہتا ہے، ایسی ایمرجنسی ٹال آتی ہے، لوگوں تو محفوظ مقامات پر پہنچانا پڑتا ہے، تو ریسکیو 1122 کے جوان اپنی بوٹ سے تحت یہاں پر موجود ہیں، وہ فوراً وہاں پر رسپونس کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے جو فلڈ ریلیف کیمپ بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی ریسکیو کی ٹیمیں، میڈیکل کی ٹیمیں ہمہ تیار ہیں اور لوگوں کی خدمت کے لیے بھرپور طریقے سے۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے امدادی آپریشن جاری ہے۔ سیلابی صورتحال کے باعث زیر آب علاقوں کا شہری رابطہ منقطع ہو گیا۔ سڑکیں بند ہونے کے باعث دیہی علاقوں میں پھنسے شہریوں کی منتقلی کے لیے ریسکیو بوٹس تعینات کی گئی ہیں۔ دیہی علاقوں سے شہر آنے والے افراد کو کشتی کے ذریعے مفت سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیس کی اضافی نفری تعینات کرنے کے لیے ڈی پی او محمد راشد ہدایت نے احکامات جاری کر دیے تاکہ کسی بھی حادثہ سے بچا جا سکے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ ادھر شاہ جیونا کے قریب دریائے چناب میں 3 لڑکیاں ڈوب گئی ہیں۔ مقامی افراد نے 12 سالہ ثنا کو بچا لیا، جبکہ اللہ رکھی اور سونیا تاحال لاپتہ ہیں۔ انہی شاہدین کے مطابق تینوں سیلابی ریلے کو دیکھنے دریا کے کنارے پر گئی تھیں۔ چنڈ پل کے قریب بھی ایک نوجوان دریائے چناب میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا ہے۔ آپ کو یہاں پر افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ شاہ جیونا کے قریب دریائے چناب میں 3 لڑکیاں ڈوب گئیں۔ مقامی افراد نے 12 سالہ ثنا کو بچا لیا، جبکہ اللہ رکھی اور سونیا تاحال لاپتہ ہیں۔ اور آپ کو بتائیں چنیوٹ میں ایک بار پھر سیلاب کا خطرہ۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ پانی کی سطح 1.25 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گئی ہے۔ چنیوٹ میں دریا کے قریبی علاقوں میں تباہی کا منظر، کئی ایکڑ پر کاشت فصلیں دریا برد ہو گئیں۔ 2 روز قبل چنیوٹ کے مقام سے 1,56,000 کیوسک کا ریلا گزرا تھا۔ آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں دریائے چناب میں پانی کی سطح کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ چناب میں پانی کی سطح کم ہونا شروع ہو گئی۔ 2 روز قبل چنیوٹ کے مقام سے 1,56,000 کیوسک پانی کا ریلا گزرا، جس کی وجہ سے دریا سے ملحقہ فصلیں زیر آب آ گئیں۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ سیلاب سے ان کی فصلیں متاثر ہو گئی ہیں۔ مکئی کا نقصان ہوا جی، باجرے کا نقصان ہوا، منجی کا نقصان ہوا، جناب توری کھڑی ہے وہ بھی ساری دبی گئی ہے، اتنے منجی سے مٹی چڑھ گئی ہے، ساری برباد ہو گئی۔ کسانوں کا کہنا تھا کھیتوں میں مسلسل پانی جمع رہنے کی وجہ سے مکئی، دھان اور سبزیوں کی فصلیں زیر آب آ گئی ہیں۔ فصلیں تباہ ہونے سے کاشتکار پریشانی کا شکار ہیں۔ ہیڈ مرالہ پر پانی کی سطح 1.25 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گئی ہے۔ آئندہ 2-3 روز میں دریائے چناب میں بھی پانی کی سطح 50,000 کیوسک سے بڑھ کر 1 لاکھ کیوسک ہو سکتی ہے۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ اور آپ کو بتائیں بجلی بلوں میں اضافے، ٹیکسز کی بھرمار پر کسانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ چنیوٹ، نادیہ والا اور قوالیہ میں کسان سراپا احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے بازی، بل بھی چلا دیے۔ کسانوں نے مطالبات منظور نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ چنیوٹ کے کسانوں کا صبر جواب دے گیا۔ کسانوں نے فیسکو آفس کے باہر احتجاجی کیمپ لگا کر دھرنا دے دیا۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور حکومت سے جنگی بنیادوں پر بھاری ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ضلعی صدر کسان بورڈ سہراب خان، سید حسن شاہ، محمد طفیل لونا، مہر امجد اور نور الحسن شاہ بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ ضلعی کسان بورڈ سہراب خان نے کہا کہ بلوں پر اضافی ٹیکس واپس لیے جائیں، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے لوڈ شیڈنگ پر بھی قابو پانے کا مطالبہ کیا۔ چنیوٹ میں کسانوں اور ایکسین فیسکو کے مذاکرات کامیاب، 6 گھنٹے مسلسل جاری رہنے والا احتجاج پرامن منتشر ہو گیا۔ تاندلے والا میں کسانوں نے پل نہر بنگلہ چوک پر اوکارا فیصل آباد روڈ بلاک کر کے احتجاج کیا۔ احتجاج میں حکومت اور وابڈا کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ احتجاج میں صدر کسان بورڈ مہر عظیم ترحان، کسان اتحاد صدر منور وٹو، عہدے دران ممبران، نواب آف جھامرہ رائے، شہریار سابقہ صدر مہر سخاوت فتیانہ، وکلا، تاجر کمیونٹی اور کسانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ احتجاج میں بجلی کے بلوں میں اضافہ نامنظور، کسان دشمن، حکومت نامنظور کے نعرے لگائے گئے۔ کسانوں نے بجلی کے بلوں
بلوں کو آگ بھی لگا دی اور مطالبہ کیا کہ اضافی ٹیکس ختم کیے جائیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت IMF کو خوش کرنے کے لیے کسانوں کا معاشی قتل کر رہی ہے۔ ایسے ہی صدر ڈویژن شمس الحق نے مظاہرین سے مذاکرات کر کے احتجاج ختم کروایا۔ ادھر کمالیہ میں بھی کسانوں نے وابڈا آفس کے باہر احتجاج کیا، ٹائر جلائے، نعرے بازی کی اور بلوں کو آگ لگا دی۔ اور آپ کو بتائیں پاور لوم سے مزدوروں کا فیصل آباد میں 15 روز سے دھرنا جاری ہے۔ احتجاج کے بعد جنگ روڈ پر ٹریفک کی روانی معطل، مسافر ایئرپورٹ تک پہنچنے کے لیے چنگچی رکشہ استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ مزدور کہتے ہیں جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے احتجاج جاری رہے گا۔ آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں پاور لومز مزدوروں کا فیصل آباد میں 15 روز سے دھرنا جاری ہے۔ 15 روز گزر گئے مگر تاحال پاور لوم مزدوروں اور انتظامیہ میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ مسافر ایئرپورٹ تک پہنچنے کے لیے چنگچی رکشہ استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ پاور لوم مزدور اجرت میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے سراپا احتجاج ہیں۔ مزدور کہتے ہیں جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے احتجاج جاری رہے گا۔ جنگ روڈ کلے دے 40,000 جڑا مزدور بےدار جڑا میں سڑکاں تے روڑ رہا آ ਉਹਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚੇ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਲਿਆ ਰੋਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠਿਕਰੀ ਵਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਡੀਸੀ ਦਾ ਪਾਸ, लेकिन साडा ना मसला हल होया सी सब रोड बंद कर देने हैं। जिस मुल्क में गरीब को इंसाफ और मजदूर को उजरत टाइम पर ना दी जाए वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, ना ही उस मुल्क का पिया कामयाबी से चल सकता है। एहतजाज में शरीक औरतें भी उजरत में इजाफे का मुतालबा करती नजर आ रही हैं। औरतों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब से ये पैगाम है कि आपको नेशनल एयरपोर्ट पे हमारा धरना नजर नहीं आ रहा तो आप हमारी वजह से, इन मजदूरों की वजह से इस सीट पे बैठे हैं। तो अगर मजदूर आपको ये सीट दे सकते हैं ना तो अगली दफा ये सीट जा भी सकती है। हमारे मुतालबा आज पूरा कर दें, हम रोड सारा खाली कर देंगे। किसी का दिमाग पागल नहीं है कि सबकी बहनें माएँ भाई सब यहीं बैठे हैं, घर छोड़कर बैठे हैं। आखिर उन्होंने भी कोई काम करना है, बच्चे रोते हैं, यहाँ आए कि धरने में बैठे हैं कि किसी कमाने वाले के लिए जाएं। मंडी में भी नहीं कोई काम भी है, सब बच्चे मजदूर भूखे बैठे हैं। हजे तो असीं कल्ला एयरपोर्ट बंद किया वा, 15 दिन तो कोई गल नहीं सुन दिया, ना इमरान खान सुन दिया ना कोई होर सुन दिया। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ रोड ब्लॉक कर देने। मजदूरों ने कम से कम उजरत में इजाफे का मुतालबा पूरा न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने की धमकी दे दी। कैमरामैन मोहम्मद कमर बुढ़ा के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। और दूसरी जानिब महकमे सुई गैस ने मुलाजमीन की उजरतों पर हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। डेली वेजेस मुलाजमीन को माहाना तनख्वाह सिर्फ 21,320 रुपये दी जाती है। हफ्तावार छुट्टी की कटौती भी जारी है। महकमा सुई गैस ने मुलाजमीन की उजरतों के मामले पर हुकूमती अहकामात ही हवा में उड़ा दिए। रवा माली साल के लिए सरकारी सतह पर मजदूर की कम अज कम उजरत 25,000 रुपये मुकर्रर की गई, मगर SNGPL में दिहाड़ीदार मजदूर को 21,320 रुपये माहाना उजरत दी जा रही है। हुकूमत ने स्किल्ड लेबर को योमिया 995 रुपये और नॉन स्किल्ड वर्करों को 961 रुपये उजरत देने की हिदायत की और इस पर मुख्तलिफ महकमों में अमल दरामद भी किया जा रहा है। दूसरी जानिब SNGPL में दिहाड़ीदार मजदूर को हुकूमती अहकामात के बरअक्स योमिया 820 रुपये मुआवजा दिया जा रहा है और हफ्तावार छुट्टी की भी कटौती की जाती है। महंगाई की चक्की में पिसे मजदूर कम तनख्वाह मिलने पर परेशानी का शिकार होकर रह गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। और आपको बताएं टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया का काल पड़ गया। दालें, घी, चीनी नायाब, शहरी खार होने लगे। कहते हैं महंगाई के तूफान में गरीब को यूटिलिटी स्टोर्स का ही सहारा होता है। टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर पर शहरी घंटों कतारों में लगने के बावजूद भी ख्वार होने लगे। शहरियों का कहना था महंगाई के इस तूफान में गरीब के लिए यूटिलिटी स्टोर ही सहारा होता है, मगर यहाँ अशिया ही नहीं मिल रही, अब कहाँ जाएं। अंदर जाने जो तो समान हुंदा ही नहीं, घंटा घंटा लाइन खलो के जाईदा अंदर, घंटे बाद जो अंदर जाने उदों कहंदे ना दालां वा ना आटा वा ना घी आ, घंटे बाद वारी कहते खत्म हो गया घी। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुर्दनोश हर वक्त होनी चाहिए ताकि मुश्किलात का शिकार ना हो। सारा दिन लाइनों में खड़े होकर गुजर जाता है। शहरियों ने आला ओहदेदारान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जवाद मलक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। और आपको बताएं असिस्टेंट कमिश्नर का उखाड़ पछाड़, डिवीजन की 4 तहसीलों टोबा, भवाना, कमालिया, शोरकोट के असिस्टेंट कमिश्नर तब्दील कर दिए। मोहम्मद आबिद शबीर असिस्टेंट कमिश्नर टोबा, मेहताब अहमद खान असिस्टेंट कमिश्नर भवाना, गुलाम मुस्तफ़ा जट को कमालिया तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास कामों की तैनात।
अमरीन चौधरी, कामरान सगीर, ज़रियाब साजिद को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। आपको यहाँ पर बता रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर का उखाड़ पचाड़ डिवीजन की 4 तहसीलों टोबा, भवाना, कमालिया, शोरकोट के असिस्टेंट कमिश्नर तब्दील कर दिए गए। मोहम्मद आबिद शबीर असिस्टेंट कमिश्नर टोबा, मेहताब अहमद खान असिस्टेंट कमिश्नर भवाना, गुलाम मुस्तफ़ा जट को कमालिया तैनात कर दिया गया है। और आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी सज्जाद महमूद बाबर का तबादला। सज्जाद महमूद बाबर को असिस्टेंट कमिश्नर कसूर तैनात कर दिया गया। DSP 18 हज़ारी महर वाजिद भरवाना भी तब्दील कर दिए गए। महर वाजिद भरवाना की खिदमात एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच के सुपुर्द कर दी गई हैं। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी सज्जाद महमूद बाबर का तबादला कर दिया है। और आपको बताएं, फैसलाबाद के 8 शुगर मिल्स के इलाकों की सड़कें तामीर मुरम्मत की मुंतज़र है। 29 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मंजूर होने के बावजूद काम शुरू ना हो सका। शुगर केन सीज कमेटी के मेंबरान के लिए सूबाई वुज़रा मेंबरान का इंतखाब भी ना हो सका। हुसैन शुगर मिल्स के इलाके की सड़कों की बहाली के लिए 8 करोड़ रुपए, रमज़ान शुगर मिल्स के इलाके की सड़कों की बहाली के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स मंजूर किए गए। मदीना शुगर मिल्स के इलाके में सड़कों की बहाली के लिए 6 करोड़, चिनार शुगर मिल्स की सड़कों की बहाली के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए। शुगर मिल्स के इलाके की सड़कों की बहाली के लिए 8 करोड़ रुपए, रमजान शुगर मिल्स के इलाके की सड़कों की बहाली के लिए 1 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स मंजूर किए गए हैं। मदीना शुगर मिल्स के इलाके में सड़कों की बहाली के लिए 6 करोड़, चिनार शुगर मिल्स की सड़कों की बहाली के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। रसूल नवाज शुगर मिल्स के इलाके की सड़कों की बहाली के लिए 2 करोड़, तांदलावाला शुगर मिल्स के इलाके में सड़कों की मरम्मत के लिए 5 करोड़, 2 स्टार शुगर मिल्स के इलाके में रोड सेक्टर की बहाली के लिए 1 करोड़ से जायद के फंड्स का इजरा किया गया है। हुंजा शुगर मिल्स के इलाके की सड़कों की मरम्मत के लिए 39 लाख रुपए से जायद मंजूर किए गए थे, लेकिन ताहाल चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट शुगर केन डेवलपमेंट सीज की तैनाती नहीं हो सकी। महकमा हाईवे ने रोड कंस्ट्रक्शन का काम सर अंजाम देना था। यहाँ पर कुछ बात करते हैं माहौलियात की बेहतरी के हवाले से। टोबे में बढ़ती माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र बड़ा इक़दाम, हुकूमत का पीर महल और गोजरा में जंगल लगाने का फैसला। दोनों तहसीलों में 4-4 मुरबा मील के रकबे पर दरख्त लगाए जाएंगे। MNA रियाज फतियाना ने कहा कि सेक्रेटरी जंगलात से मुशावरत कर ली है, जंगल के लिए जगह महकमा रेवेन्यू फ्राहम करेगा। आपको बताएं, वेलकम टू टोबा। गोजरा से टोबा टैक्सी आने वालों का गंदगी के ढेर इस्तकबाल करने लगे। गोजरा रोड के साथ बने ग्रीन बेल्ट्स में गंदगी के ढेर लग गए। नशेइयों के डेरे, शहरी परेशान, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। टोबा टेक्सिंग के पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाहिस गंदगी का मंजर पेश करने लगे। साबिक डिप्टी कमिश्नर नसीम सादक ने गोजरा रोड पर पार्क नुमा ग्रीन बेल्ट्स की बुनियाद रखी थी, मगर मौजूदा जिला इंतजामिया इसको फाल करने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। शहरी कहते हैं ग्रीन बेल्ट्स को जल्द से जल्द फाल किया जाए। बच्चे शाम को पार्क में खेलते थे, अब ये नशेइयों और आवारा जानवरों का गढ़ बना हुआ है। बहुत अच्छा इंतजाम था, बच्चों के झूले भी लगे हुए थे इसमें, और ये फुटपाथ भी था। अब ये फुटपाथ की हालत भी खस्ता बहुत ज़्यादा हो गई है, गंदगी ज़्यादातर बहुत, ये देख लो आपके सामने अब ज़्यादा है। शहरियों का मजीद कहना था इंतजामिया कूड़ा उठाने की बजाय मजीद कूड़ा फेंक देती है, जिससे गंदगी में इजाफा हो रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया बारिश के पानी की निकासी को भी फाल किया जाए, ताकि बच्चे पार्क्स में आकर ताज़ा आबोहवा हासिल कर सकें। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा सामा यासीन, सिटी 41, टोबा टेक्स। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में जौहर कॉलोनी का गंदा नाला इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। माहौल ताफुन सता है, कूड़ा करकट के ढेर पानी की निकासी में रुकावट बनने लगे। जौहर कॉलोनी में नाले की हिफाजती दीवार न होने के बायस किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। नाले में लगे कूड़ा क्रिकेट के ढेर पानी की निकासी में रुकावट बनने लगे। 12 दफा साडे इत्थे ना आले दुआले रहायशां तुसीं दिखा सकदे, इधर भी ते इधर भी। ये दोवें महल्ले आ, 2-3-4 महल्लियां दा गढ़ आ। इत्थे छोटे छोटे बच्चे 12 दफा डिग पे, एक परसों चोट गया, कई दफा इथों लाशां कढ़ियां। गंदा नाला इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। इलाके का माहौल ताफुन ज़दा हो गया। शहरियों का कहना था नाला बंद न होने की वजह से लोग इसमें कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं। भाजी बहुत प्रॉब्लम है जी सानू, ठीक है, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਆਣੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੂੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਭਾਜੀ ਢੇਰ 15 दिन तक ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। अक्सर सड़क से गुजरने वाली सवारियां भी मुतासिर होती हैं। बाइक, चिंची रिक्शा और दीगर सवारियां भी अक्सर गंदे नाले में गिर जाती हैं। रोजाना सफाई न होने की वजह से लोग कूड़ा फेंक देते हैं। शहरी कहते हैं गंदे नाले में कूड़ा क्रिकेट होने की वजह से इंसानी जानें भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं। ये बिल्कुल इसे सुटना नहीं चाहिए।
ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਢੱਕਿਆ ਜਾਏ ਉਤੋਂ जिस तरह दूसरे टक्के जाते हैं। शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि सफाई की जाए ताकि इंसानी जानों को बचाया जा सके। कैमरामैन उस्मान के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैजाबाद। आपको बताएं, जंग कचरा कुंडी में तब्दील कचरे के अंबार से शहरियों का जीना दोभर हो गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जहां शहर के दीगर इलाकों में सफाई में नाकाम है, वहीं शहर के सबसे बड़े तालीमी इदारे गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सदर के सामने से भी कूड़ा उठाने में नाकाम नजर आती है। कॉलेज के बाहर मौजूद कूड़े की वजह से तलबा और तालबात को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। तलबा और तालबात तौफुन ज़दा माहौल में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। दिन ब दिन जो गंदगी है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। अगर बारिश आ जाए तो यहाँ पे चलना फिरना जो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दरख्वास्तें दी गई, मगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कान पर जूं तक न रेंगी। बारिशों के मौसम में गंदगी से तलबा और तलबात का काली तक पहुंचना किसी इम्तिहान से कम नहीं। हमारा दिल्ली का इधर से गुजर होता है, यहाँ पर बड़ा ताफुन ज़्यादा माहौल बना हुआ है। लोग यहाँ पर मुख्तलिफ लाइशें फेंक जाते हैं। जब यहाँ पर अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ से गुजरना और महाल हो जाता है। तलबा की जानिब से डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान से सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने की अपील की गई ताकि खुशगवार माहौल में तालीम हासिल कर सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। और आपको बताएं, फैसलाबाद बिलाल टाउन में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। फैसलाबाद बिलाल टाउन में बिजली की गैर एलानिया बंदिश मामूल बन गई। फेस्को ने 1 साल कबल ट्रांसफार्मर तब्दीली के लिए उतारा जो ताहाल न लगाया जा सका। बिलाल टाउन को मुल्हका इलाके के ट्रांसफार्मर से बिजली फराहम की गई। आए रोज डी ट्रिप होने के सबब इलाके में बिजली गायब रहने लगी। इलाका मकीन बिजली की आंख मचोली से बिलबिला उठे। लालिया के नवाही इलाके नई आबादी कॉलोनी शादीपुर के मकीनों का फेस्को के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिदीन का कहना था कि 100 kVA का ट्रांसफार्मर खराब होने पर 50 kVA का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। आबादी में 150 के करीब घरेलू सार्फिन जबकि 4 ज़रूरी मोटर्स चल रही हैं। वोल्टेज इंतहाई कम होने की वजह से घरों में कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जल चुकी हैं। शहरियों का कहना था कि अक्सर औकात ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है और कई बार SDO की हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो सका। इमरान खान के असासों की तफसीलात सिटी 41 सामने ले आया। चेयरमैन PTI ने 108 फैसलाबाद से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। कागजात नामजदगी के मुताबिक इमरान खान ने बीवी बुशरा बीवी के नाम पाकपतन और ओकाड़ा में 698 कनाल अराजी डिक्लेयर की। बीवी के नाम 3 कनाल का घर बनी गाला में भी डिक्लेयर किया गया। इमरान खान ने वरासत में मिलने वाले 2 घर बखर में 228 कनाल जमीन भी डिक्लेयर की। जमान पार्क घर की तामीर पर 4 करोड़ 86 लाख 60 हजार रुपए खर्च किए। 2020 में बनी गाला में इजाफी तामीरात पर 39 लाख 54 हजार 79 रुपए लगाए। कागजात नामजदगी के मुताबिक इमरान खान के इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में 1 फ्लैट और 1 कमर्शियल प्लॉट है, जहां से 14 लाख रेंट वसूल कर रहे हैं। इमरान खान के पास 4 बकरियां जिनकी मालियत 2 लाख रुपए है। इमरान खान और उनकी बीवी के पास कोई जेवर नहीं है। इमरान खान की किसी भी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। इमरान खान के पास 1 करोड़ 12 लाख 29 हजार 398 रुपए हैं। 4 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी डिक्लेयर की गई हैं। इमरान खान ने कागजात नामजदगी में बच्चों का जिक्र नहीं किया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद के लीगी MPA मियां ताहिर जमील ने 108 इंतखाबात के हवाले से इज़हार ख्याल कहते हैं राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली की सुलह से मसला नून मजबूत हुई है। भी पार्टी की कॉल आती थी, जब भी पार्टी की तरफ से हुक्म आता था तो चौधरी शेर अली साहब उनके हुक्म की तामील करते थे। तो हमारे जो छोटी मोटी नोक झोंक थी वो चलती रहती थी और मैं खराज तहसीन पेश करूंगा लीडरशिप को कि उन्होंने इस मौका पर तमाम मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को मुत्तहिद किया और इंशाअल्लाह हम मिलकर सब मुकाबला करेंगे। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए CTO फैसलाबाद मियां मोहम्मद अकमल की स्कूल सरबराहान से मीटिंग। स्कूल सरबराहान को सुबह और छुट्टी के औकात में स्कूल के सामने ट्रैफिक कंट्रोल करने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए। और आपको बताएं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 34वें मिड मैनेजमेंट कोर्स के वक्त का फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत का दौरा। सदर चैम्बर आतिफ मुनीर की सदारत इजलास। वक्त को फैसलाबाद की कारोबारी हैसियत बारे ब्रीफिंग दी गई। इजलास की सदारत फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के सदर आतिफ मुनीर ने की। सीनियर नायब सदर इमरान महमूद और दीगर शामिल थे।
اور آپ کو بتائیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے 64ویں مڈ مینجمنٹ کورس کے وفد کا فیصلہ ایوان صنعت و تجارت کا دورہ، صدر چیمبر عاطف منیر کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ وفد کو فیصل آباد کی کاروباری حیثیت بارے بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کی صدارت فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے صدر عاطف منیر نے کی۔ زیر نائب صدر عمران محمود شیخ، نائب صدر رانا فیاض، ایگزیکٹو ممبر چیمبر اظہر چودھری بھی شریک تھے۔ اور آپ کو بتائیں فیسکو میں ٹائم سکیل پروموشنز ایکشن آپریشن جنگ ڈویژن 2 مدثر علی شیخ سمیت 11 افسران کو گریڈ 19 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ فیسکو کی جانب سے مجموعی طور پر 11 افسران کو ترقی دی گئی۔ سینئر انجینئر فیسکو عابد رشید اور دیگر شامل ہیں۔ اور آپ کو بتائیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ قوم پر جان نشاور کرنے والے جنگ کے سپوت رب نواز کو سلام۔ عظیم سپاہی رب نواز نے جان تو دے دی مگر ملک پر آنچ نہ آنے دی۔ پاک فوج کی عظیم سپاہی رب نواز صوبہ بلوچستان کے شہر تربت میں غیر ملکی انجینئرز کی جان کی حفاظت پر مامور تھے۔ جنگ کے اس سپوت نے 15 اگست 2014 کو فرائض انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور ساتھ ہی دلیری و محبت کی داستان بھی چھوڑ گئے۔ جان قربان کی تھی وطن دے پیچھے، الحمدللہ شکر ہے اللہ دے بچیاں دی حیاتی رکھے تے اللہ تواڈی سکھ تے صحت دینے اللہ باویں تے سب باتیں یاد آتی ہیں۔ کہتا میں نے بچیوں کو بہت پڑھانا ہے، بہت لکھانا ہے، بہت اس کی حسرت ہے۔ میں یہی کہتی ہوں یوں نہ کو میں پڑھا لکھا کے اس بابے کا نام روشن کروں۔ شوق شہادت رکھنے والے رب نواز نے سیاچین کے گیاری سیکٹر اور وانا آپریشن میں بھی دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ شہید رب نواز کی بیٹی کنیز روباب اور بیٹا محمد بلال حیدر پاک فوج میں جانے کے خواہش مند ہیں، جبکہ بھتیجا آج بھی تایا کی یاد میں زارو کتار روتا دکھائی دیتا ہے۔ میں انشاءاللہ بڑا ہو کے بابا کی پوسٹ پہ لگوں گا اور اپنے بابا کا نام روشن کرنے پائلٹ بننا چاہتی ہوں اور اپنی جان قربان کرنا چاہتی ہوں اس وطن پر۔ چھوٹی بیٹی کنیز زہرا اور دوسرا بیٹا وسیع حیدر آج بھی بابا کو یاد کرتے ہیں۔ شہید رب نواز کی والدہ کہتی ہیں مجھ سے بات کرنے کی خواہش لیے رب نواز دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 4۔